सर, जन्म से लेके मरने तक हम लोग का जिंदगी में बहुत सारे फेजेस आते। हर एज में हम लोग का पसंद नापसंद बदल जाते, रिश्ते बदल जाते, मोहब्बतें बदल जाते, दोस्ती बदल जाते, प्रायोरिटी बदल जाते। लेकिन जन्म से मरने तक एक चीज नहीं बदलते, वो है भूख। और ये भूख जो लोग मिटाते हैं, वो किसान, उनके लिए सरकार क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सर, 2-4 स्टेट है, उसमें 2-4 किसान है जिसके पक्का घर है, ट्रैक्टर है। लेकिन बाकी देश के किसान के पास ना घर है, ना ट्रैक्टर है, सिर्फ गरीबी है। ट्रस्ट में सर, economic survey claims output in agriculture and farmers' income has increased, but record shows that it is yet below the decade-back production. And regards for farmers' income, either no change or fall in real incomes. Allocation for agriculture under demand 1 has been reduced by 3%. So appear here the crucial questions that when 48% the country employment, 65% of the population and 18.2% of GDP depends only on agriculture. Therefore, question number 1, why there is a cut of 3% in the allocation? And question number 2, how can merely 3% allocation of the total budget do justice to such massive dependency? सर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहते, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर, लेकिन किसान का बेटा क्यों किसान बनना चाहेंगे? हो सकते है उसका बाप दादा किसान है, बाप दादा समझाएंगे ये महान काम है, लेकिन बेटा बाप को ये नहीं पूछेंगे, अगर बाबा आपको पता है ये महान काम है, सरकार को क्यों नहीं पता है? जो महानता सरकार को दिखाना है वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों सालों भर का मेहनत का टोमेटो, पोटैटो, ट्रक हम लोग रास्ते में फेंकते, तब महानता कहां जाते? सर, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट क्लेम्स record output of food grains, but actually soon they did ban the export of wheat and paddy, and the public in the street had to buy the food grains at ever increased prices. The total budget allocation of natural farming over last 3 years budget comes to rupees 746.19 crores only. Budget is talking the natural farming, backcountry gardening, unnatural substances. The economy survey notes expected growth in the agriculture sector in 3.8%. Interestingly, State of Indian Agriculture 2015-16 by Ministry of Agriculture informed that decade back, India had the annual average growth rate of 5% in the agriculture sector. Sir, are not the life and contribution of sharecroppers to be counted important? If my state West Bengal can include its sharecroppers under West Bengal Kishak Bandhu schemes, therefore what stops Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना include करने के लिए क्या problem है? ये remains a mystery as well a pathetic decision. Sir, we need to be serious and concerned about the distress of farmers. Perhaps due to having such poor understanding on farmers' problems, in the budget PMFBY, the crop insurance scheme has got a cruel cut-off to 23%. PMFBY charges premium from the enrolled farmers. In West Bengal, the state-run Bangla Shosho Bima schemes is a fully state government-funded scheme, for which enrolled farmers need not pay any premium. Annually 6,000 crore खर्च होते हैं स्टेट के लिए. 109 लाख फार्मर्स एनरोल हुआ है नया, जो ममता बनर्जी के सरकार दे रही. 18 से 60 तक अगर उसी एज में कोई किसान मर जाए, उनके लिए ममता बनर्जी 2 लाख करके देते हैं. सर, ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें एक लक्ष्मी भंडार जो 2-4 स्टेट उसको फॉलो किया. अगर ये स्कीम भी सेंट्रल फॉलो करे, इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई शर्म है नहीं, कोई ईगो है नहीं.
कर सकते हैं। फर्टिलाइजर आर क्रूशियल फॉर फार्मर्स because it covers all economics aspects, and the wisdom of government not only cuts fertilizer subsidy in the budget but also remained insensitive with the supply of fertilizer. As an example, West Bengal used to get a specific grade of NPK to the tune of 4.50 lakhs MT in 2021. The pathetic fact is, in 2024-25, the quantity of supply of the same grade was reduced to 1.33 lakhs MT. The mentioned cut in supply by the union government thus compelled the farmers of Bengal to buy high prices phosphate and potash fertilizer. 1.07 लाख MT सप्लाई करने का बात था जनवरी 2025 में। जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, अभी मार्च भी जाने वाला है, अभी तक वहां पे मिले नहीं। अभी तक वेस्ट बंगाल में किसान के पास फर्टिलाइजर पहुंचे नहीं। सर, बहुत किसान हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर बॉर्डर में पड़े हैं। डे बिफोर यस्टरडे उन लोगों को निकाला है। मुझे ये लगता है जो आंदोलन करते हैं उनको पता है हक मिले ना मिले, लाठी का डंडा का मार तो मिलेगा, फिर भी वो लोग रास्ते में बैठते हैं क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। मैं ये भी सोचती हूँ, जब जिनके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक होता है, जिनके पास ये पावर होता है, वो जब घर में खाना खाते हैं एसी रूम में बैठ के, शायद कभी ना कभी उस किसान का बात याद करते हैं जो रास्ते में पड़े हैं, जो फैमिली नहीं है। अभी जूट के बारे में सर, मैं एक ही हूं मेरा पार्टी के आज, तो मैं नहीं है सर, नहीं है, मैं बोलती हूँ नहीं है, वो दुख चले गए, मैं एक ही हूं। जूट के बारे में बोलूं, वेस्ट बंगाल लीड्स इन जूट प्रोडक्शन इन द कंट्री. Unfortunately, jute industry is facing challenging due to the policy of Government of India in decreasing the demand in jute bags and eco-friendly packaging material. Budget has not produced any direction to jute production and schemes for assured price to farmers. Sir, lakhs of families are dependent on jute industry and stand as a perfect example of how the policy making of union government is apathetic with the farmers. West Bengal, India's largest jute producing state, accounts for 70 of the country's 93 jute mills. The union government has increased MSP to rupees 5,650 per quintal from rupees 5,335, but fact says that due to low demand from purchasers, including Food Corporation of India, the price went as low as rupees 5,000 per quintal last year. Country's production of raw jute has dropped by over 29% in the past decade. पता है सर, टाइम कम है और हम लोग अपोजिशन में भी हूँ, सरकार का गलती बोलती हूँ, झूठ जो है वो सच क्या है वो भी बताती हूँ, इसलिए टाइम और भी कम हो जाते। यह भी पता है तारीफ करने से, वाह वाह करने से टाइम ज्यादा मिल जाते। एनीवेज, मैं एक स्टोरी बता के खत्म करना चाहती हूँ। ये स्टोरी भी नहीं है, एक इंसिडेंट है, एक रियलिटी है हम लोग का देश का। मैं एक जगह पे गई थी, जगह का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे। वहां पे कोई बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे, उनसे देखने से पता चलता है वो गरीब है, किसी का शर्ट नहीं है, किसी का पैंट नहीं है, किसी का चप्पल नहीं है, और घर भी देखने से पता चल रहे थे वो गरीबी है। तो देखा एक बच्चे के हाथ पैर में कुछ रैशेस थे, स्किन डिजीज जैसा। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ये क्या हुआ? बोला पता नहीं। मैंने बोला ये स्किन डिजीज है, डॉक्टर के पास गए थे? बोला नहीं, उनके पास तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कुछ होते थे माँ शायद कोई लगा देते, हल्दी चरण ये सब, लेकिन वो फिर भी बोला नहीं। फिर मैंने बोला तुम नहाते नहीं हो? क्योंकि पता है बच्चे लोग नहाने से भागते हैं, और जो मिट्टी में खेलते शायद वो मिट्टी कीचड़ उसको लगने से वो स्किन डिजीज हुआ। मैंने फिर से पूछा नहाते नहीं हो? तो बोला नहीं। मैंने बोला देखा ना इसलिए होते। फिर मैंने क्यों नहीं नहाते हो?
बोला नहाने के बाद ज्यादा भूख लगते हैं। सोचिए अगर नहाएंगे तो उसको ज्यादा भूख लगेंगे और भूख लगने से खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग नहीं नहाते। मैं ये वो सुनने के चुप हो जाए, इसलिए मैंने बोला जगह का नाम बोले सब चीखने चिल्लाने लगेंगे आप लोग। ये रियलिटी है। अगर उस टाइम मैं सुन के मैं चुप हो गई हूँ, मैं इसीलिए बोला ये बोलने से ये चीखेंगे, ये चीखना चिल्लाना इसीलिए ये देश का है। लेकिन मैं उस दिन वो सुनने के बाद चुप रही, लेकिन मैं ये बात करूंगी सरकार को, ये सुनने के बाद प्लीज आप लोग चुप मत रहे, कुछ कहे कुछ करे, ऐसा चीखना नहीं, काम करना है। थैंक यू सर।